Hello students, in this slide we will discuss about barriers of communication. These are physical, semantic and socio-psychological. Now the barriers of effective communication. You all know that what are the main causes to affect communication very badly, and these are time, language, noise, distraction, lack of interest and etc. I already told you the barriers of effective communication, and these are the factors that interrupt or obstruct the effectiveness of communication. They result in mismatch between understanding of the message by the sender and the receiver. These barriers can occur at any stage of the communication process, whether that will be sending, encoding, transmission, decoding or receiving. So you all understood that what are the barriers of communication. Now let's step by step the main barriers of communication. Firstly, we will discuss about physical barriers. One of the This is one of the major barriers in communication in a workplace, that is called the physical barrier. When messages are sent by the sender, physical barriers like doors, walls, distance, etc. do not let the communication become effective. These are often due to nature of environment. फिजिकल बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो कि काफ़ी मेजर बैरियर के रूप में इसे काउंट किया जाता है. कई बार यह कुछ एनवायरमेंटल नेचर के चलते भी इस तरह का जो बैरियर है वह अराइज होता है. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल बैरियर. फर्स्ट, नॉइज. Too much noise interrupts the communication process and acts as a barrier as it makes message less accurate and unclear. कभी कभी जब क्लासरूम में कुछ आसपास कुछ काम होता है या कुछ नॉइज आती है तो वह कम्युनिकेशन प्रोसेस को काफ़ी इंटरप्ट करता है और इससे कि जो मैसेज होता है वह एक्यूरेट नहीं जा पाता और वह काफ़ी वेग मैनर में सुनाई पड़ता है. नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट और क्लाइमेट. Thunder, rain, wind and other environmental factors create noise which cannot be stopped and disturb the message flow. Natural noise is present in the environment which disturbs the communication. All these disasters are responsible for interrupting the communication. Time and distance. If a message is not sent in an appropriate time, the message will not have the effect that it should have, as the intention will not be completed. This causes barrier in communication. So the time of the message should be accurate. यदि हम कोई भी मैसेज को टाइम पर नहीं सेंड करते हैं या मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता तो उस मैसेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है. Distance add more requirements and barriers to communication. As greater the distance, the more technical channels are needed. डिस्टेंस गैप को दूर करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल चैनल्स की ज़रूरत होती, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी ये मीडियम्स जो होते हैं वो फेलियर हो जाते हैं जिससे कि जो मैसेजेस हैं वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते. द सेंडर एंड रिसीवर नीड टू इंक्लूड मशीन एज मीडियम्स, एनकोडिंग, डिकोडिंग एक्सेट्रा. Face-to-face communication has the least physical communication barrier and are easier as there are more communication channels. Now, next is workplace design. If the employees' workplaces are far away from the room of employers, they will not be able to communicate with the employers, take proper orders, make plans, get feedback and suggest new ideas. They must work through phones or email. These mediums have more noise and other technical problems than face-to-face communication. In this way, workplace designs act as a physical barrier to effective communication. कभी कभी जो हमारा वर्क प्लेस होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, तो ये एक एरर के रूप में अराइज होता है, एक एरर की तरह होता है जिससे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वह पूरा नहीं हो पाता, कम्युनिकेट प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है. Now, the second barrier is semantic barrier. The semantic barrier generally arises when the information is not in the simple language and contains those of the words or symbols that have multiple meanings. यह बैरियर उस तरह के बैरियर्स में आता है और यह तब अराइज होता है जब इंफॉर्मेशन जो होता है वह सिंपल लैंग्वेज में नहीं होता,
या ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिसके मोर देन वन मीनिंग होते हैं। तो यह जो एक बैरियर होता है वो अराइज होता है। इसके जो कॉजेज होते हैं, दीज आर words with different meaning, faculty translations, unclarified assumptions, denotations and connotations, technical jargons, bad expression, etc. ये सारे टर्म्स को आपको समझना होगा कि ये क्या क्या कॉजेज होते हैं। जैसे कि लेट मी टेल यू द वन पॉइंट दैट इज टेक्निकल jargons. Technical jargons mean some special or technical words which are mainly used by the professional and which can't be understood by the common people. So there are some words, some difficult words are here, which uh, which is which creates difficulties to understand that communication. Now the third is socio-psychological barriers. The socio-psychological barriers or emotional barriers refers to the psychological state. यह किसी व्यक्ति के मेंटल स्टेट पर निर्भर करती है, जो कि ओपिनियंस, एटीट्यूड, स्टेटस, कॉन्शियसनेस, इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं। एंड इट इज़ ऑफ अ पर्सन दैट डीपली अफेक्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। यह उस व्यक्ति को इतना अफेक्ट करती है कि वह प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। द कम्युनिकेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन। एज आई टोल्ड यू दैट साइकोलॉजिकल or emotional barriers that is totally depending on the mental condition of a person. If the person is not mentally or emotionally sound, then he cannot communicate effectively either as a sender or a receiver. Social and psychological factors are the most difficult barriers to communication. This consists of the following. इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वह सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में जाने जाते हैं, लाइक इमोशंस, एटीट्यूड एंड ओपिनियंस, कल्चर डाइवर्सिटी, क्लोज माइंड, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉन्सेप्टिंग गोल्स एक्सेट्रा। लाइक इमोशंस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ मेंटल स्टेटस। ये एक मेंटल स्टेटस या कंडीशन होती है किसी व्यक्ति की। जब तक वह इमोशनली या मेंटली वह व्यक्ति जो है साउंड नहीं करता है या फील नहीं करता है, तब तक वह किसी भी तरह के मैसेज को रिसीव नहीं कर पाता। उसी तरह से होता है एटीट्यूड एंड ओपिनियन। कई बार किसी व्यक्ति का इतना एटीट्यूड होता है कि वह किसी भी तरह के मैसेजेस को पॉजिटिवली रिसीव करने के लिए अग्री नहीं होता। तो जो एटीट्यूड या ओपिनियंस होते हैं उस व्यक्ति के लिए बैरियर की तरह होते हैं। अनदर एग्जाम्पल दैट इज कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी मीन्स जैसे क्लासरूम में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटी के बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट के तौर पे पढ़ते हैं। सबकी कल्चर, सोसाइटी डिफरेंट होते हैं, तो कभी कभी एक लैंग्वेज जो होता है उन्हें अडॉप्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसमें से कुछ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कुछ और जो रह गए हैं, जैसे देखिए एटीट्यूड एंड ओपिनियन, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, बट लेट्स डिस्कस सुपरफिशियली वंस अगेन। द पर्सनल एटीट्यूड एंड ओपिनियंस ऑफ द रिसीवर ऑफन इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। जो पर्सनल एटीट्यूड होता है रिसीवर का, वह हमेशा कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करता है। इफ द मैसेज मैचेस विद द रिसीवर्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन, दे रिसीव इट पॉजिटिवली। यदि वो पर्टिकुलर मैसेज उस रिसीवर को लगता है कि मेरे एटीट्यूड को सूट करता है या मुझे सुनना चाहिए, तो वह उसे पॉजिटिव वे में कैप्चर करता है। लेकिन यह मैसेज सपोज उसके इंटरेस्ट का नहीं होता या उसे समझ में नहीं आती, तो वह उसे समझने की कोशिश या उसको रिसीव करने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज इमोशंस। इमोशंस लाइक फियर, एंगर, वरी, नर्वसनेस ब्लॉक द माइंड। ऑल दिस इमोशंस आर ब्लॉक द माइंड। अगर हम किसी इस तरह के इमोशंस को फेस कर रहे होते हैं तो वह हमारे दिमाग को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हम किसी भी तरह की चीज़ों को रिसीव करने में एबल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये भी कम्युनिकेशन को बैडली इफेक्ट करता है। स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस कॉन्शियसनेस इज़ अ वेरी सीरियस बैरियर। ये एक बहुत ही सीरियस बैरियर होता है। नॉर्मली जो हायर अथॉरिटी होती है
वो अपने सबऑर्डिनेट से बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारे लेवल के नहीं हैं। और उसी तरह से जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी काफ़ी नर्वस होते हैं, उन्हें लगता है कि हम लो स्टैंडर्ड के, या फिर कहीं हम इनसे बात करें तो ये हमारी इंसल्ट ना कर दें। नेक्स्ट वन इज क्लोज माइंड। A person with closed mind is not willing to listen and is not prepared to reconsider his opinion. As such, it is very difficult to communicate with such persons. कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिनने एकदम बना लिया होता है कि नहीं, मुझे इनकी बात सुननी ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों से बात करना जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उन्हें किसी भी तरह से कन्विंस करना जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। Now the next one is premature early evaluation. It means it prevents or stops effective communication. Some people form a judgment even before receiving the complete message. It often happens. कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आई रहती किसी भी चीज़ की, एक्शन की, हम पहले ही सोच लेते हैं कि यह ऐसा होना चाहिए या ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे कम्युनिकेशन में फेलियर होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह यूज़ होता है। सो once judgment is already formed, the mind is closed to the rest of the map. You all know that good communication is not just a process of transferring information from one person to another. Communication का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ information को share करना. Actually, it is an art. यह एक talent या art की तरह होता है. Firstly, जिसमें हम सुनते हैं, then read करते हैं उस information को, then उसको हम completely understand करके process करते हैं, और उसके बाद हम receiver को transfer करते हैं। बट ये जो बैरियर्स हैं वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को थ्रेट करते हैं या उसे इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे कि हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। ये जो बैरियर्स होते हैं ये कम्युनिकेशन को काफ़ी डिफ़िकल्ट, मीनिंगलेस बनाते हैं और इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाती है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है। जब हमें इंटरेस्ट नहीं आता है या वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं होती या हमें नॉलेज नहीं होता, तो वो हमारे लिए काफ़ी अनइफेक्टिव होता जाता है। सो जस्ट ट्राई टू improve your vocabulary and just try to pay attention on that particular subject. Thank you.